Good afternoon, everyone. Hope you all are in now in class ninth, and I will be teaching you physics. Hmm. So let's start with the first chapter. And before we start the first chapter of the physics, let me tell you a few things. Like in physics, that you need to practice, you need to read, revise. I mean, generally, with as you do in all other subjects. Here you will have to also practice a bit, because it is a bit mathematical. So let's start with the first chapter. So the first chapter is motion. So this this word, or this actually phenomena we see everywhere around us. The movement of words, the movements of vehicles, the motion of vehicles, we ourselves move from one position to another. Okay, so we see everywhere. Okay, let's say if we go out of earth, we will see that earth is moving, the moon is moving. So there are so many kind of motions are going on uh, around us. Okay, so we will try to understand basic type of motions. I mean, though there are so many kind of motions like vibrations, the rotation, circular motion, etc., etc. Okay, but here, because here we will start with the simple uh, type of motions. Okay, motion in a straight line we will discuss about distance, displacement, speed, velocity, acceleration, etc. Okay, so before we proceed, let's actually just discuss few activities. The activity 8.1. Uh, the first one is discuss whether the ball of your classroom or the room are at rest or in motion. Actually, this is very simple question. Like when you will read the introduction of your chapter, you will get to know few things कि कुछ चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं रुकी हुई हैं, बट वो किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हो सकता है कि चल रही हो. जैसे कि आप एक बस में, एक ट्रेन में होते हैं, तो वो आपके लिए रुकी हुई होती है, बट कोई बस के बाहर खड़ा हुआ है, ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ है, उसके लिए वो मोशन में होता है. इसी तरीके से हमारे लिए जो रूम की वॉल है वो रुकी हुई है, बट अगर कोई भी अर्थ के बाहर से इसको देखेगा तो बिकॉज अर्थ मूव कर रही है, तो वो वॉल जो है पर्टिकुलर वो भी मूव कर रही होगी. ओके, तो ये डिपेंड करता है किस पे, कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग इसको देख रहे हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एक अपने आप में टर्म है जिसको हम लोग बाद में समझेंगे. ओके, दूसरी एक्टिविटी में आपको दे रखा है, have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? Discuss and share your experience. ओके, तो जब आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, तो क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि वो चल रही है? Yes, it happens. Like when you are sitting in one train and you are actually looking outside, and some other train is moving and your train is at rest, so you might have seen that, you will find out or you will experience that your train is moving, but the reality is that your train is at rest but the other train is moving. Okay, so I mean, this is how this happens. Okay, so now we will go to the another thing. So this figure is given in your NCERT. You can just see, you can download the chapter and you can see that. Okay, I mean here let's say before this we should get to know that what is the reference point. Okay, जैसे कहीं पर किसी भी जगह पर क्या होता है कि आप जब भी कभी कोई चीज़ मेज़र करना चाहते हैं, किसी मोशन को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ से आप सारी डिस्टेंसेस मेज़र करेंगे. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप मॉर्निंग में घर से स्कूल की ओर जाते हैं, तो लेट्स सपोज़ कि आप अपने घर को एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया.
ओके, तो वहाँ से आप कैब में बैठे, आप व्हीकल में बैठे, व्हीकल में बैठने के बाद में आप चलते हैं और वहाँ से अपने डिस्टेंसेस कवर करते हुए स्कूल पहुँचते हैं। ठीक है, तो लेट्स से आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस 6 किलोमीटर्स है। ओके, तो वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, क्या? आपका घर। इसी तरीके से हम चाहें तो स्कूल को रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम अपने मोशन के ऑब्ज़र्व करने के लिए किसको रेफरेंस पॉइंट चूज़ करेंगे। ओके, तो ये टोटली डिपेंडेंट होता है कि हम क्या करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे बहुत टाइप के मोशंस होते हैं, हम एक सबसे सिंपल मोशन को ऑब्ज़र्व करेंगे। ओके, उसे भी ऑब्ज़र्व करने से पहले आपने अभी देखा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अब तो हमारा सबसे पहला है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन समझने से पहले आप समझें कि पोजीशन क्या होता है। ओके, कि हमारा ऑब्जेक्ट या हम जिस भी जगह पर लोकेटेड है ना, वो हमारी पोजीशन कहलाएगा। और वो पोजीशन हमारी डिफाइन होती है हमारे किसके? रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। जैसे अभी आपने अपना घर चूज़ किया था रेफरेंस पॉइंट, आपके उस रेफरेंस पॉइंट से स्कूल की पोजीशन कितनी दूरी पर है? वो है 6 किलोमीटर पर। ओके, इसी तरीके से लेट्स से कोई आपका नाम मान लीजिए राघव है ना, और आप अपने वाहन में बैठ करके दूसरे स्टूडेंट के घर जाते हैं जहाँ से गाड़ी उसको रिसीव करती है। लेट्स से उसका घर वहाँ से 2 किलोमीटर पे है। तो वो स्टूडेंट का जो घर है वो आपके जो घर है उससे कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पे है? 2 किलोमीटर। तो उसकी पोजीशन क्या होगी? 2 किलोमीटर आगे। फाइन, चलिए अब हम ज़रा इस फिगर को समझते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है? एक हमारा पॉइंट O है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या ले लिया है? ओरिजिन, जो कि हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ से हम लोगों ने डिस्टेंसेस को मार्क कर दिया है। पॉइंट C है, B है और A है। ओके, तो इसी से हम लोग थोड़ा सा समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। लेट्स से आप O से A जाते हैं, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है? यू कैन सी इट 60 किलोमीटर्स। ओके, तो ये आपका 60 किलोमीटर्स कवर हुआ है। इसमें आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या हैं? 60 किलोमीटर्स। अब एक दूसरा केस हम एज्यूम करते हैं। मान लीजिए आप ओरिजिन O से A तक गए और वहाँ से वापस आए आप B तक। तो होता क्या है कि आप एक्चुअली में ओरिजिन से गए 60 किलोमीटर और फिर वापस आप आए हैं कितना? 25। ओके, तो आपका इस केस में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो तो हो जाएगा 60 प्लस 60 जाने का और 25 वापस आने का। तो टोटल कितना हो गया? 60 प्लस 25 विच इज़ 85। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका डिफाइन किया जाता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी डिस्टेंस होती है वो। तो आपका इस केस के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वो 60 माइनस 25 हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ओरिजिन से आप 60 गए और 25 वापस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो जाएगा। कितना? 25। तो आपका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 35 किलोमीटर इन सेकेंड केस। ओके, तो अब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन दे सकते हैं कि डिस्टेंस हमारा क्या होता है? डिस्टेंस होता है द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस, है ना। दोनों केसेस में हमने देखा कि 60 किलोमीटर चले और दूसरे केस में 60 गए और फिर 25 वापस आए, तो 60 प्लस 25 85 हो गया। तो ये हमारा एक्चुअल पाथ कवर जितना किया है वो हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज़ द basically defined as the distance between final and the initial position. ओके, तो पहले केस में तो ओरिजिन से A की 60 थी, तो वही हम लोगों ने लिया बिकॉज फाइनल और इनिशियल के बीच में डिस्टेंस उतनी है। दूसरे केस में ओरिजिन से B, है ना, उतनी ही है, तो यानी कि सिर्फ 35 किलोमीटर है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि
दूसरे केस में आपका डिस्टेंस जो है वो 85 हो गया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो सिर्फ 35। ओके, क्योंकि आप वहाँ तक गए 60 और फिर वापस आ गए, तो इसीलिए आपका जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 35 रह गया। ओके, तो ये हमारा डेफिनेशन हो जाता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो अब आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए, इसके बाद हम वापस से एक्टिविटी पर आ जाते हैं। हम लोग 8.3 आप लोग खुद देख सकते हैं, अगर किसी को कोई इशू होता है तो वो कॉल करके पूछ लेगा। एक्टिविटी 8.4 इम्पॉर्टेंट है, उसको देख सकते हैं। Automobiles are fitted with a device that shows the distance traveled. Okay, such a device is known as odometer. A car is driven from Bhubaneswar to New Delhi. The difference between the initial reading and the final reading of the odometer is 1850 किलोमीटर। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो भी व्हीकल्स होते हैं उनमें एक ओडोमीटर होता है, जिसमें वो व्हीकल कितना चल चुका है अभी तक वो वहाँ पर रहता है। ओके, तो हमें जो कंडीशन दी गई है उसमें एक व्हीकल जो है वो भुवनेश्वर से चल कर के दिल्ली आया, जिसमें आपका फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग के बीच में डिफरेंस कितना है, 1850 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा व्हीकल है वो भुवनेश्वर से दिल्ली आने के लिए उस कितना चलना पड़ा उसको डिस्टेंस, 1850 किलोमीटर्स। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। ओके, तो आप एक बार जो है रोड मैप ऑफ इंडिया निकालेंगे और निकाल करके चेक करेंगे वेदर यू नो आई मीन दिस दैट द रीडिंग इज़ डिफरेंट और दी सेम। ओके, तो इससे आपको एक बेसिक ऑब्जर्वेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए एक बार हम लोग वापस से रिवाइज़ कर लेते हैं जो हम लोगों ने आज देखा है। सबसे पहले तो हमने मोशन की बात की है, लेकिन मोशन को समझने से पहले हमको पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग मोशन को ऑब्ज़र्व करने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट चूज़ करते हैं, जिसके रेफरेंस से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे हम लोगों ने आपका घर जो है उसको रेफरेंस पॉइंट लिया और उसके रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंट पोजीशंस को देखा और समझा। दूसरा जो हम लोगों ने मेन चीज़ समझी है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस क्या होता है, दिस इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो हमारा इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन होती है उसके बीच में डिफरेंस होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक सर्कल पर हैं, ओके, तो जब आप बात करेंगे सर्कल के जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है, एक पूरा सर्कल पे घूम करके वहीं पर वापस आ जाते हैं, तो ज़रा सोचिए एक बार कि वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होगा। एक बार विचार करिए। चलिए मैं बताता हूँ कि जब आप एक सर्कल पे के किसी भी पॉइंट से चलेंगे और पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस वहीं पर आ जाएंगे, तो क्या होगा कि आपका डिस्टेंस तो आप कितना चल गए, 2πr, जो कि उसका पेरीमीटर होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि आपका फाइनल और इनिशियल पोजीशन वहीं पर है, उसके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हुई। चलिए अब कुछ एक चीज़ें और बता देते हैं आपको। एक्चुअली आज से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, बहुत सारे लोगों को कुछ एक चीज़ें हो सकता है कि समझ में ना आई हों, तो आप लोग को अगर कोई भी डाउट होता है तो आप जो हैं वो कॉल कर सकते हैं 11 से 4 बजे के बीच में, या फिर अपने कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आप पर्सनली मुझे लिख करके भेज सकते हैं। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको क्लैरिफाई करूँ। अब आपका अगला जो होमवर्क है
वो है पेज नंबर 100 पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको एक बार करने की कोशिश करें, है ना। और जितने हो जाते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं होते हैं वो मैं एक बार नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके, तो आप इतना एक बार पढ़ें, रिवाइज़ करें, और नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी मैं एक अगले लेक्चर में क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।